Good morning everyone. Today we are going to learn a very interesting chapter of class 8th history topic, the revolt of 1857. Starting with this chapter with a beautiful lines taken from the poem Jhansi Ki Rani written by Subhadra Kumari Chauhan. बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. You all have must heard this poem in your earlier classes. This poem is a true tribute to the Rani Lakshmibai for her iconic leadership in the revolt of 1857 and the freedom of independence of India. This poem beautifully captures the indomitable will and the courage shown by the Rani Lakshmibai. Let's start this chapter knowing about the history regarding this poem and the revolt of 1857. So we will start this chapter knowing the timeline of the East India Company. East India Company came in India in 1600 and in 1757 Battle of Plassey was fought. Battle of Plassey was fought between Sirajuddaula and Robert Clive. Before 1757, East India Company was acting as only as a trading company. But after the Battle of Plassey, when they got the Diwani rights and the taxes revenue rights, the British East India Company was no more acting only as a trading company. They got the political powers also. Okay? So this is how they were affecting the locals of the India. Like they were affecting the people of India. They started the East India rule, like rulers of Indian state, Indian sepoys, zamindar, peasants, traders, artisans, pandits and Maulvis. These all were adversely affected by the rule of East India Company. Because see, before 1757 they were only having the rights of doing trade, but after the Battle of Plassey was fought, they got the Diwani rights of the country of the India. तो वो वहाँ से ट्रेडर पावर, अब उनके पास सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स नहीं थी, they also now got the political powers. अब उससे क्या हो रहा था? These people, the Indian rulers like sepoys, zamindars, peasants, traders, artisans, these all people were getting affected by the East India rule. But after this, these people were not only limited to the, अब ऐसा तो नहीं है कि ये लोग कुछ कर रहे होंगे तो हमारे लोग जो इंडियन सिपाहीज होंगे वो लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे. They were also doing the rebellious movements, like some social religious movements were fought, political movements were up, peasants uprising were there, civil rebellions were there, but these all were suppressed by the East India Company. ये सारी चीजें क्या कर दी गई? Suppressed कर दी गई. किसके द्वारा? East India Company के द्वारा. Because उनके पास क्या आ चुकी थी? अब they were not only limited to the trading company, now they got the what? Political powers also. ठीक है? अच्छा, but what happened to the what was happened to the 1757 to 1857? है ना? अब कोई आप पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहा है कि आपको दीवानी राइट्स देने हैं, मतलब आपको टैक्सेस देने हैं, आपको लैंड पे पीजेंट्स को पे करने हैं, तो पीपल विल रिबेल, है ना? लोग तो रिबेल करेंगे ही. तो उस वजह से इन दीज 100 years क्या हुआ कि एक ऐसी चिंगारी लगती है ना? ऐसी चिंगारी लगती है that give the spark to the what? फ्रीडम स्ट्रगल. फ्रीडम स्ट्रगल को बच्चा एक ऐसी चिंगारी मिल जाती है कि अब वो क्या करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट एक लड़ाई, एक जंग छेड़ेंगे. क्लियर? अब वो लड़ाई क्या थी? वो लड़ाई ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक राइफल इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज पैटर्न 1853 इनफील्ड राइफल मस्केट. ये एक न्यू राइफल थी. अर्लियर देयर वाज अ ओल्ड राइफल, बट उन्होंने एक न्यू राइफल इंट्रोड्यूस की थी, पैटर्न 1853 इनफील्ड मस्केट राइफल. तो क्योंकि दिस न्यू राइफल वाज फाउंड एज मोर इजियर टू हैंडल देन द ओल्ड राइफल. प्रॉब्लम क्या थी? What was the problem in the old rifle? प्रॉब्लम ये थी कि सी दिस इज अ गन, ये इसका क्या है? बैरल एरिया है. तो the sepoys have to carry 2 bags like gunpowder and bullet as a separate 2 bags,
which is very much heavier for a person, for a warrior to carry 2 bags. अगर वो 2 कंधे पे बैग लेके अगर एक गन भी साथ में, तो see how much heavy it will become for the soldiers, है ना. तो इट इज अ कम्पलसम एंड अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. पहले क्या करना होता था, उन्हें इसे बुलेट को डालना होता था एंड देन गन पाउडर डालना होता था, फिर इसको एक रॉड से उसको एंड पॉइंट तक पहुंचाना होता था. तो इट वाज आल्सो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. बट फिर क्या हुआ, फिर पैटर्न 1853 व्हिच वाज द न्यू राइफल, इसमें क्या किया गया कि एक कार्टिलेज बना दिया गया. एक कार्टिलेज क्या था कि इस कार्टिलेज में पहले से ही बुलेट और गन पाउडर का एक इक्वल वेरिएशन क्या होगा, फिर एक तरीके से उनको अच्छे से मैनेज करके एक कार्टिलेज में पैक करके रख दिया जा रहा था. अब उन्हें बस इतना करना होता था, दे जस्ट हैव टू डू वन थिंग कि ये जो गन है ना, ये जो गन है उसमें बस इन्हें क्या करना होता था, दे जस्ट हैव टू लोड दिस कार्टिलेज. They just have to load this cartilage, है ना, और then they can use it. But what was the problem in the cartilage? What led to the mutiny? आखिर लड़ाई क्या होगी, ऐसा क्या इस cartilage में था कि which led to the mutiny? This cartilage, see, this is the diagram of a cartilage. यहाँ पे क्या होता था, बुलेट होता था एंड पॉइंट में, एंड इसके ऊपर क्या होता था, गन पाउडर होता था. क्या होता था, गन पाउडर होता था, ये वाला एरिया, है ना. बट दिस कार्टिलेज, अब इस ये दोनों को पैक करने के लिए एक पेपर यूज होता था, और ये पेपर ग्रीज होता था. किससे, दिस पेपर वाज ग्रीस्ड बाय द लार्ड एंड टेलो. लार्ड है जो एक पॉर्क फैट से बनता है, एंड टेलो जो गाय के बीफ से बनता है. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये थी कि इन इंडिया द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और सिपॉइज जो थे उनमें भी हिंदू और मुस्लिम्स थे. तो दे फाउंड दैट कि हम जो मुस्लिम लोग थे, दे फाउंड दैट इट इज अ टैबू फॉर द मुस्लिम, बिकॉज उनके यहाँ क्या है, पिग हराम है, और इंडियंस में काऊ क्या है, पूजनीय है, माता है हमारी. तो दे फाउंड दैट आवर रिलीजन इज इन डेंजर. उन्हें लगा कि हमारा जो धर्म है किसमें है, खतरे में है, तो हम तो इसे यूज नहीं करेंगे. ठीक है. एक्चुअली करना क्या होता था कि उन्हें ये जो कार्टिलेज का जो ये ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, तो सोल्जर्स हैव टू टियर ओपन द एंड ऑफ द कार्टिलेज. उन्हें इस कार्टिलेज को अपने मुंह से टियर करना होता था, एंड देन दे हैव टू पोर. सी यहाँ पे क्या कर रहा है, पोर कर रहा है ना, तो उसको फिर बैरल के अंदर पोर करना होता था, एंड देन विद रैम्प रॉड, है ना, रैम्प रॉड से क्या करना होता था, उसको एंड बैरल के एंड में क्या करना था, स्नैप ऑफ करना होता था, ताकि तो इससे क्या होता था, लाइक उन्हें अपने टच करना होता था टंग से. तो उनके लिए अब वो जो ग्रीस हुआ है पिग के फैट से, और किसके फैट से, काउ के फैट से, लार्ड एंड टेलो से, तो ये उनके लिए क्या होगा कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि हमारे धर्म के अगेंस्ट है, इससे हमारा रिलीजन क्या है, खतरे में है. ठीक है. तो दिस वाज ऑल दी स्टोरी. अब होता क्या है कि सिर्फ सिपॉइज ने ही नहीं मना किया था, और भी लोग और भी जगह पे. अब ये रिवॉल्ट सिर्फ आपका कहाँ स्टार्ट से हुआ था, बहरामपुर से. कहाँ हुआ था, बहरामपुर से. बट ये रिवॉल्ट से बहरामपुर तक ही नहीं रुका, ये रिवॉल्ट आपका आगे भी गया. तो बहरामपुर में 19 नेटिव इन्फेंट्री, जो फरवरी में ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था 1857 में, वहां पे इसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया. बट वहीं पे बैरकपुर जो आपका वेस्ट बंगाल में है, वहां पे भी 34th नेटिव इन्फेंट्री में, आप सबने मंगल पांडे की कहानी सुनी होगी. मंगल पांडे यहीं से थे. उन्होंने क्या किया था कि अपने सारे से, मतलब अपने जो मेजर जनरल थे उनको क्या कर दिया गया, मार दिया. उन्होंने उनको द मंगल पांडे के सीनियर ऑफिसर, उसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था 18 अप्रैल को. क्यों किया था उन्होंने, अपने सीनियर को क्यों मारा था, क्यों, क्योंकि ही ऑल्सो क्या रिवॉल्टेड अगेंस्ट दिस कार्टिलेज यूज. उन्होंने बोला नहीं, मैं ये कार्टिलेज यूज नहीं करूंगा. ठीक है. तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली जब जूनियर सीनियर से लड़ता है तो सीनियर्स ने मना कर दिया. तो उन्होंने जब इसके आगे रिवॉल्ट किया तो उन्होंने आउट ऑफ एंगर उन्होंने उन्हें मार दिया. ठीक है, द सीनियर को, एंड देन ही वाज एग्जीक्यूटेड ऑन 8th अप्रैल. कहां पे, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में. फिर वहीं दूसरी तरफ अवध में भी 7th अवध रेजिमेंट 3 मई को, वहां के भी लोगों ने क्या किया, नो, उन्होंने भी मना कर दिया कि वो भी उसको यूज नहीं करेंगे, कार्टिलेज को यूज नहीं करेंगे. ठीक है. देयर वर रंबलिंग ऑफ द रिजेंटमेंट इन द वेरियस
कैंटोनमेंट्स। कैंटोनमेंट्स मतलब एक ही जगह नहीं, आप देखो बैरमपुर, मेरठ, है ना, अभी हम देखेंगे, उसके बाद बैरकपुर, अवध, तो बहुत सारी जगह सारे सिपॉइज ने धीरे 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 करके क्या कर दिया, मना करना शुरू कर दिया, दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द यूज ऑफ कार्टिलेज। अब यही लड़ाई हम देखते हैं मेरठ में। मेरठ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्यों, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, क्योंकि यही से माना जाता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 की लड़ाई स्टार्ट की गई थी। हालांकि बहरामपुर से हुई थी, बट मेरठ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, अभी मेरठ जो 24 अप्रैल, देखो लड़ाई कब से शुरू हुई थी, फरवरी से हुई थी, कहाँ पे, बहरामपुर से, बट अब हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे, अप्रैल में आ चुके हैं। यहाँ पे थर्ड नेटिव कैवलरी। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इन्फेंट्री एंड कैवलरी? बच्चा, इन्फेंट्री जो ऑन फुट क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, कैवलरी और घुड़सवार जो हॉर्स को यूज करते हैं लड़ाई में, ठीक। तो 90 men of third native cavalry refused to accept the greased cartilage. 90 लोगों ने, 90 सिपाहीज, they refused to use the cartilage. But out of 90, 85 लोगों को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया उसी दिन, ठीक है। 10 years के लिए उनको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। बस आफ्टर दैट डे क्या हुआ कि उन सारे 90 लोगों में जो थे 85 लोगों को जेल में डाला गया। दे ऑल्सो रिवॉल्टेड अगेंस्ट दिस एंड देन वहां से वो लोग बाहर निकलते हैं एंड दे मार्च टुवर्ड्स वेयर, दिल्ली। वो कहाँ जाते हैं, दिल्ली। ये देखो आपका रेड फोर्ट, क्या है ये, रेड फोर्ट। तो दे मार्च टुवर्ड्स द रेड फोर्ट। But from the Meerut, it did spread to the rest of India. On 10th May, sepoys from the Meerut cantonment headed towards Delhi. This date is recorded as a revolt of 1857 का starting. देखो क्यों इसको स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, वाई नॉट बहरामपुर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ से सिपॉइज दिल्ली मार्च गए थे, है ना। बहरामपुर से दे डिड नॉट मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, बट यहाँ से ये लोग दिल्ली के साइड मार्च करते हैं, ठीक है। ओके, मेरठ से दूर था दिल्ली 58 किलोमीटर। दे मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। द लोकल इन्फेंट्री, वहां के जो लोकल इन्फेंट्री जो दिल्ली के थे, उन लोगों ने भी क्या किया, उसे ज्वाइन किया एंड दे आल्सो मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, ठीक। अब जब ये लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली में दे आल्सो फॉट विद द सिपॉइज ऑफ द दिल्ली, जो वहां पे पहले से ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स सिपॉइज, है ना, वहां पे लड़ाई करते हैं। अब वो वहां पे मिलते हैं किससे, एट दिस पॉइंट द सिपॉय म्यूटनी ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिवॉल्यूशनरी वॉर। अब देखो दिल्ली जब आते हैं तो हमारे जो लास्ट मुगल रूलर, वो लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर, ये देखो बहुत बुरे से हैं, देख रहे हो, ये जो हमारे लास्ट रूलर बोलते हैं बहादुर शाह जफर, जो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, एजेड हो गए थे, बहुत ज्यादा पावरलेस हो गए थे। इन्हीं क्या किया जाता है, हम लोग एज एन एम्परर अब हम मानते हैं, और इन्हीं के गाइडेंस में जो हमारे इंडियन सिपॉइज थे अब आगे की रिवॉल्ट में लड़ाई करने वाले थे, ठीक है। यू नीड अ लीडर इन एवरी वर्क, आप बिना लीडर के कोई काम नहीं कर सकते हो, है ना। एक लीडर इज नॉट लाइक कि आप सिर्फ उसको सुनो, नहीं, लीडर वो होता है जो सब तक अपनी बातें पहुंचाए, जो सबको साथ में टीम स्पिरिट मेंटेन करने का काम करता है, ठीक। एम्परर इंडिया। अब बहादुर शाह जफर क्या करते हैं, ही रोट द लेटर्स टू ऑल द चीफ एंड द रूलर्स ऑफ इंडिया। उन्होंने ट्राई किया कि लाइक अब ये रिवॉल्ट जब छिड़ चुकी है, जंग छिड़ चुकी है, तो क्यों नहीं पूरे इंडिया के सारे रूलर्स को भी इसमें क्या किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए। तो ही रोट द रूलर्स टू द चीफ एंड द chiefs of the India, urging them to organize a confederacy of Indian states to fight and replace the British regime, ताकि वो उन्हें बुलाए और एक साथ जुट होकर, एक साथ मिलकर वो क्या करे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ दे, हटा दे, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहादुर शाह जफर लीडर बन गए थे, ये इंडियन सिपॉइज हैं। लॉन्ग रेन ऑफ मुगल डायनेस्टी हैड बिकम द ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ इंडियन पॉलिटी यूनिटी। अब बच्चा वी विल नाउ स्टडी अबाउट दी क्या, कि कहां ये लड़ाई छिड़ी, क्यों, क्योंकि देखो बहादुर शाह जफर ने बहुत सारे किंग्स को क्या बोला कि दे ही रोट द लेटर्स टू द किंग्स एंड क्वींस ऑफ दी वेरियस स्टेट्स। अब उन्हें बोला कि ज्वाइन करो इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, ताकि हम इसको क्या कर सके, एक सक्सेसफुल लीड दे सके, क्लियर। अभी लड़ाई हुई कहाँ थी, तो हम लोग देखेंगे कि लड़ाई कहाँ थी, दिल्ली, मेरठ। हम देख रहे हैं कि कैसे मेरठ से दिल्ली अभी हम लोग आ चुके हैं। देन वी विल सी कि कैसे बरेली हम गए, ठीक है, लखनऊ का देखेंगे, कानपुर देखेंगे, झांसी देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से वी विल सी दीज आर सम सेंटर पॉइंट्स स्टार्टिंग विद दी कानपुर। ओके, कानपुर में क्या हुआ था कि एंग्लो मराठा वॉर में आपने पढ़ा होगा कि जो आपके पेशवा बाजीराव थे, जो लास्ट पेशवा थे, है ना, उनको क्या किया था, ही वाज सेंट टू दी वेयर
बिठूर, इन्हें बिठूर भेज दिया गया था, है ना। और इन्हें क्या बोला गया था, इन्हें जेल में, कहाँ पे, जेल में या फिर क्या दो, प्रिजन में भेज दिया गया था, क्लियर है। और ही वॉज नोन एज द लास्ट पेशवा रूलर ऑफ द कानपुर एंड इनको उस टाइम पे सिर्फ पेंशन मिलती थी, क्या मिलती थी, और ये कौन देता था, ईस्ट इंडिया कंपनी इनको पेंशन देती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया कि हम आपके अडॉप्टेड सन जो नाना साहेब थे उनको हम अपना पेशवा नहीं मानेंगे और उनको हम कोई पेंशन भी नहीं देंगे, वी विल नॉट गिव द पेंशन टू द ओम नाना साहेब दो पंथ, ठीक है, उनको हम पेंशन नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ अपना पेशवा किसको लास्ट मानते हैं, पेशवा बाजीराव को मानते हैं, और वो भी कहाँ चले गए थे, एंग्लो मराठा वॉर के बाद बिठूर जा चुके थे, ठीक है। देन उसके बाद ऐसा तो नहीं था कि क्या बोलते हैं दो पंथ जो थे आपके नाना साहेब वो चुपचाप बैठते। when he found out that कि revolt of 1857 has been started, तो नाना साहेब ने क्या किया, उनको ज्वाइन किया एंड देन he acknowledged बहादुर शाह जफर as the emperor of India and declared himself, और उन्होंने क्या किया, पेशवा की गद्दी पे बैठे और वहां के जो हुग विलर जो स्टेशन कमांडर थे उनको मार दिया और अपने आप को क्या बना लिया, पेशवा डिक्लेयर कर दिया, क्या कर दिया, अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, उस टाइम पे। एंड चलते हैं हम लोग फिर कहा, लखनऊ में वाजिद अली शाह जो वहां के क्या थे, नवाब थे, उनकी वाइफ थी बेगम हजरत महल और उनका बेटा था ब्रिजिस कादिर। वाजिद अली शाह को एक्साइल पे भेज दिया गया था, है ना, वाजिद अली शाह को क्या कह दिया गया था, एक्साइल पे भेज दिया गया था। जब वो एक्साइल पे चले जाते हैं तो उनकी वाइफ क्या करती है, टू ओवर द रेन ऑफ लखनऊ, उनकी राजपाट का जो पूरा काम रहता है वो कौन लेती है, बेगम हजरत महल लेती है। और वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटे को क्या करूंगी, उस गद्दी पे बैठाऊंगी। अब जब रिवेलियस ब्रोक आउट हो गया, अब 4 जून को फिर वहां पे सिपॉइज आते हैं और इनको क्या करते हैं, ब्रिजिस कादिर को अपना नवाब बना देते हैं और इस तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाती है, और ये जीत जाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और फिर यहाँ पे उनका बेटा ब्रिजिस कादिर जो रहता है वो नवाब बन जाता है। और वहां पे जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स रहते हैं, हेनरी लॉयड, इन सबको क्या करती है, रानी मार देती है, दे किल्ड ऑल द ब्रिटिशर्स, उन सबको क्या करती है, मार देती है। फिर हम लोग देखते हैं कि बरेली में क्या हुआ था। ओके, बरेली की स्टोरी इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 82 years old के जो आपके क्या थे, खान बहादुर खान, he was revolting against the Britishers with his army of 40 soldiers, मतलब, और ये एंड तक पता है ये हारे नहीं थे, ये एंड तक ब्रिटिशर्स से लड़े थे, है ना। ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस, इसलिए कहते हैं स्टिफ रेजिस्टेंस इन्होंने ब्रिटिशर्स को दिया था और इस टाइम पेंशन पे थे। और वही हम देखते हैं लास्ट जो हमने जहां से शुरुआत किए थे हम उसी पे आ जाते हैं। हमने देखा था कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द इमेंस पावर जो उनके पास थी, इन्होंने अपनी लगा दी, क्यों, बिकॉज ही फॉट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 विद अ स्वॉर्ड इन वन हैंड, और उन्होंने अपने कंधे पर अपने बेटे तक को रखा था। सी, तो झांसी में के कौन राजा थे, राजा गंगाधर राव थे, बट इनकी डेथ के बाद रानी लक्ष्मीबाई क्या करती है, इसको टेक ओवर करते हैं। बट उनका जो एक अडॉप्टेड सन था दामोदर। अब आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का कॉन्सेप्ट लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का कॉन्सेप्ट क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में ये बोला गया कि ब्रिटिशर्स विल नॉट एक्सेप्ट एनी अडॉप्टेड सन, दे विल ओनली एक्सेप्ट द बायोलॉजिकल हायर ऑफ द किंग और क्वीन। वो किसी भी अडॉप्टेड सन और क्या बोलते हैं डॉटर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर किसी किंग का कोई बेटा बायोलॉजिकल नहीं है तो वो उससे अपना नवाब या फिर उनका किंग नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश सिस्टम, तो उसी फ्लोर में फिर उन्होंने इनके साथ रानी लक्ष्मीबाई वो आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ इंडिया, इनके साथ तात्या टोपे भी थे जो बहुत अच्छी लड़ाई करते थे। बट फिर वही एंड में she has fought tremendously in the revolt of 1857. But still the revolt of 1857 was not became a successful revolt. इसके रीजंस हम देखेंगे क्यों, क्योंकि देखो बच्चा आपके यहाँ पे इन इंडिया लाइक व्हेनेवर सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे थे। अगर आप देखो ये क्यों सोच रहे थे, क्यों, क्योंकि इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अगेंस्ट लड़ना था, है ना। इनको क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये पेंशन पे जी रहे थे और इनका कोई वारिस नहीं था, है ना। यहाँ पे क्या इनके हस्बैंड नहीं थे और वारिस नहीं था, इनको अपने बेटे को गद्दी बैठाना था इसलिए, है ना। सी यहाँ पे भी आप देखिए अडॉप्टेड सन थे, सेम वही कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की वजह से यहाँ पे भी बैठे, इनको कोई पेंशन नहीं मिलती। तो लाइक एवरी किंग एंड क्वीन वाज फाइटिंग फॉर देयर सेल्फ,
कोई इंडिया के लिए क्या बोल रहे थे, कोलैबोरेटिवली नहीं लड़ रहे थे, है ना। तो दिस वाज द मेजर रीजन। फिर क्या हुआ कि ये पूरी लड़ाई आपकी 20 सितंबर को 1857 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया एंड बहादुर शाह जफर वॉज टेकन प्रिजनर एंड वर एक्साइल्ड टू दी रंगून। उन्हें रंगून की बस में बैठाकर रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पे दिस द ग्रेट हाउस ऑफ मुगल वॉज फाइनली कंप्लीटेड एस्टिमेट। और फिर इनके बाद इनके जो 2 बेटे थे उनको भी मार दिया जाता है। तो इसके बाद मुगल डायनेस्टी भी खत्म हो जाती है। और उनको मारने वाले कौन थे, जॉन निकलसन जो थे, जॉन निकलसन, ही वाज द ब्रिटिश ऑफिसर जिन्होंने इस पूरी लड़ाई को एंड किया था, किसको, इनको जेल भेजकर, हमारे लीडर बहादुर शाह जफर को। नाउ वी विल सी द रीजंस ऑफ द फेलियर। पहला रीजन ये था, ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। वही तो मैंने बोला कि सब लोग इन्वॉल्व नहीं थे, ओनली द, आप देखो मैप में आपने देखा होगा कि ओनली दिस पार्ट, सिर्फ नॉर्दर्न एरिया के लोग, देखिए सिर्फ नॉर्दर्न एरिया। अगर पूरा इंडिया अगर पार्टिसिपेट करता, सारे किंग्स अगर पार्टिसिपेट करते, तो मे बी दिस रिवॉल्ट बिकेम सक्सेसफुल, है ना। तो ये भी रीजन था इसके फेलियर का। और इसका नेक्स्ट था, ऑल क्लासेस डिड नॉट जॉइन। सारी क्लासेस नहीं थे। जमींदार में भी आप देखो तो जो वेल्दियर जमींदार थे वो तो बस हाँ ब्रिटिशर्स के हाँ में क्या कर दिया, उन्होंने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये था कि अगर ब्रिटिशर जीत गए तो फिर हमें वापस से हमारी पोजीशन नहीं मिलेगी, है ना। ऑल क्लासेस, ओनली द लोअर क्लासेस वर पार्टिसिपेटिंग, जिनको सच में जिनके साथ गलत हो रहा था, दे पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट ऑफ 1857। पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट, आपने देखा जो हमारे पास न्यू राइफल थे उसको भी हमने क्या कर दिया था, बाइकआउट कर दिया था। और हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, हमारे पास हमारे टाइम पे क्या थे, स्वॉर्ड्स थे, बट उनके पास क्या थे, राइफल्स थे, है ना। अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी, सबकी अपनी अपनी क्या थी, इच्छा थी, सबकी अपनी अपनी क्या थी, सोच थी। दे वर नॉट रिवॉल्टिंग फॉर दी व्हाट, फॉर द आइडियोलॉजी, सिंगल आइडियोलॉजी कि हाँ हमें देश को क्या करना है, वी हैव टू टेक द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। उनका कोई एक मकसद नहीं था। सब लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हटा रहा है, कोई नवाब बनना चाह रहा है, कोई अपने बेटे को गद्दी बैठाना है, तो सबकी आइडियोलॉजीज क्या थी, अलग थी, ठीक है। रिबल्स रिप्रेजेंटेड diverse elements with differing grievances and concepts of current politics. So this was all about revolt of 1857. We studied about the timeline of the East India Company, his arrival, कैसे revolt of 1857 हुआ, and we also studied the centers of the revolt, कहाँ पे कौन से राजा ने कैसे, रानी ने कौन से क्या क्या किया, and then we studied the failure, why this revolt of 57 got failed, ठीक है। So this was all about revolt of 1857. I hope you like this, understood this concept. Thank you.